All right, so starting from history, today we'll be starting our Pakistan movement from 1920 to 1929, जिसके अंदर हमारे पास है Jinnah's resignation from the Congress. Then we'll discuss Delhi proposal, Simon Commission, all party conferences, the Nehru report, all parties convention and Jinnah's 14 points. इसके हमारे पास जितने भी past papers क्वेश्चन आ चुके हैं, we are going to discuss them all. और ये आपकी टाइमलाइन जाती है from 1920 to 1929. So starting off, what were द दिल्ली proposals 1927. ये दिल्ली proposals क्या था basically? Now considering the separate electorates be the main hindrance in improving Hindu-Muslim relations, Quaid-e-Azam proposed that if Hindus agreed to provide certain safeguards, the Muslim would give us this demand. हम ये demand छोड़ देंगे separate electorate वाली अगर Hindus हमें कोई proper safeguard के कोई rights वगैरह दे दें. Consequently, ये जो proposals थी ये जब conference से approve हो गए, which was held by Muslims in 1927, they were known as Delhi Muslim proposals. Now, unfortunately, Congress ने पहले accept कर लिए थे, but later they rejected the proposals. Now, following चीजें थी जो proposal के अंदर थी जिसको पहले कांग्रेस ने accept किया था, but then they refused those proposals और ये आपके पास आए थे 1927 के अंदर. ये जो proposals थे, they were there in 1927, जिसके अंदर बात थी that there would be a formation of the separate province of Sindh. There would be introduction of reforms in the northwest frontier province and in Balochistan on the same footing as in other provinces, unless and until the above proposals were implemented. The Muslims would never surrender the right of their representation through separate electorates, and Muslims would be willing to abandon separate electorates in favor of joint electorates with the reservation of seats fixed in proportion to the population. मतलब जितनी proportion है populations का उस हिसाब से Muslims के पास seats होनी चाहिए. Hindu minorities in Sindh, Balochistan, and NWFP be accorded as the same concessions in the form of reservation of seats over and above the proportion of their population as Muslims would get in Hindu majority provinces. प्लस उन्होंने कहा था कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन वुड नॉट बी लेस देन वन थर्ड, मतलब हमें सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर एटलीस्ट वन थर्ड रिप्रेजेंटेशन तो चाहिए है. और तब तक हम कोई रेजोल्यूशन और बिल को कंसिडर नहीं करेंगे अनलेस जब तक सारी मुस्लिम की माइनॉरिटीज उसको अपोज कर रही होंगी तो हम उसको नहीं पास करवाएंगे. देन केम द साइमन कमीशन इन 1927, जब कांग्रेस ने इन दिल्ली प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया था. गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1919 जो हमने देखा था, इट वाज एसेंशियली ट्रांजिशनल इन कैरेक्टर अंडर सेक्शन 84 एंड सैड दैट अ स्टैट्यूटरी कमीशन वाज टू बी अपॉइंटेड एट द एंड ऑफ 10 इयर्स कि वो डिसाइड कर सके कि नेक्स्ट सेल्फ रूल और इंडिया का क्या स्टेटस हो, क्या पॉसिबल होगा या नहीं होगा. अब ये साइमन कमीशन बेसिकली सर जॉन साइमन एक बंदा था, उस बंदे का आना इंडिया में उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, Simon Commission. All members of the commission were British and they were regarded as highly insulting to the Indians. ये कमीशन क्यों आते थे? ये कमीशन आते थे कि चेक करने की अब आगे का क्या प्रोसेस है, अब आगे कैसे बढ़ानी है गवर्नमेंट को या रूल को किस तरह बढ़ाना है. दिस वॉज रिगार्डेड एज हाईली इंसल्टिंग, सारे ब्रिटिश लोग आए हैं. When the Simon Commission arrived, local masses welcomed it by slogans of "Go back Simon." हर जगह अखबारों में दीवारों पे "Go back Simon" के नारे लगे हुए थे, एक्सेप्ट द शाफी लीग ऑफ पंजाब. ठीक है, बहुत सी ऑल द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट द शाफी लीग ऑफ पंजाब बॉयकॉटेड द साइमन कमीशन. सिर्फ शाफी लीग जो पंजाब की थी उसने बॉयकॉट नहीं किया था साइमन कमीशन को. नाउ लेट्स डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ द स्प्लिट ऑफ मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग कैसे स्प्लिट हुई थी? All the major political parties of subcontinent except the Shafi League of Punjab boycotted the Simon Commission. There was a clear split in the Muslim League. Sir Muhammad Shafi, who wanted to cooperate with the commission, decided to convene a Muslim League session in Lahore. और एक दूसरी फ्रैक्शन थी जो कि जिना लीड कर रहे थे. The fraction held a Muslim League session at Calcutta and decided to form a subcommittee to confer with the working committee of INC and organization. फिर आपके पास है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस in 1928. After the failure of Simon Commission, there was no alternative for the British government but to ask the local people to frame a constitution from themselves. अब था कि आप डेमोक्रेसी की तरफ आए, लोगों को ही पूछें कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर सकते हैं. दे न्यू अब हमारे पास हमने किससे पूछना है? कांग्रेस से और मुस्लिम लीग से, क्योंकि यही वो दो मेजर पार्टीज हैं उस वक्त. बट द प्रॉब्लम इज दैट दे बोथ हैड serious difference of opinions. Birkenhead, who was the Secretary of State for Indian Affairs, threw the ball in the Indian politicians' court and asked them to draw forthcoming act, which both Hindus and Muslims could agree. तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इंडियन अफेयर्स का, उसने इंडियन पॉलिटिशियंस की मानी, उसने कहा कि आप एक्ट बनाएं जो कि दोनों हिंदूज और मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करेगा.
तो सबसे पहली मीटिंग हुई विद द इंडियन लीडर्स एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड फॉर दिस पर्पस द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट दिल्ली इन जनवरी 1928, जिसके अंदर मोर देन 100 delegates of almost all of the parties of the subcontinent assembled and participated in the conference. Unfortunately, the leaders were not able to come to any conclusion, and the biggest hindrance was the issue of the rights of minorities. सेकेंड मीटिंग जब हुई थी, सेकेंड मीटिंग ये हुई थी व्हेन दिस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन मार्च, उसी साल में अगेन लीडर्स के दोबारा क्या थे, डिफरेंसेस थे उनकी, एक बात पे एक ही कंक्लूजन के ऊपर वो नहीं मिल सके थे, सबके अपने अपने ओपिनियन थे। और सिर्फ एक काम हुआ था इसके अंदर कि दो सब कमिटीज बन गई थी, लेकिन अगेन म्यूचुअल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा थे और ये दोबारा से कोई रिजल्ट नहीं निकल सका था। थर्ड मीटिंग में जब बॉम्बे में मिले थे, there was hardly any prospect again of an agreed constitution, and it was then again decided कि अब एक और small committee बैठेगी जो कि वर्क करेगी इस डिटेल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे, जिसको मोतीलाल नेहरू हेड करेंगे। एंड देयर वर आल्सो 9 other members in the committee, including 2 Muslims, including सैयद अली इमाम एंड शोएब कुरैशी। सो फिर सवाल आता है, व्हाट वाज बेसिकली द नेहरू रिपोर्ट 1928? The committee worked hard for 3 months at Allahabad, and its memorandum was called the Nehru Report. The chairman joined hands with the Hindu Mahasabha and unceremoniously quashed the recent Congress acceptance of the Delhi proposals. और फिर आपके पास ये नेहरू रोट आ गई थी। कैन यू टेल मी मूसा, ये नेहरू रिपोर्ट में क्या था जो आपको याद है, जो पढ़ा हुआ हमने बुक में? व्हाट वाज इंक्लूडेड इन द नेहरू रिपोर्ट, और व्हाट डू यू थिंक व्हाई वाज इट रिजेक्टेड बाय नेहरू? सर, नेहरू रिपोर्ट में ये था कि इंडिया को वो देनी चाहिए, डोमिनियन स्टेट देनी चाहिए। इसके अंदर ये लिखा था कि जो 9 पैक्ट में मुस्लिम्स को वो मिले थे कंसेशंस, वो कंसेशंस अब नहीं होंगे। उसके अलावा वो लिखा था उसमें कि उनके जो मुस्लिम्स के वो थे कि सेपरेट इलेक्टरेट्स, वो उन्होंने नहीं माने नेहरू ने। उन्होंने कहा कि ये नहीं हम दे रहे, तो उन्होंने वापस ले लिया कंसेशंस को। उसके अलावा फिर इसके बाद जिना के वो भी आए, 14 पॉइंट्स आए, और उससे वो भी हुआ, क्या कहते हैं उससे। इसके बाद सर मुस्लिम्स को उन्होंने जो 1/4 रिप्रेजेंटेशन दी थी वो भी उन्होंने वापस ले ली, और उन्होंने जो तो क्या कहते हैं सर, फिलहाल तो नहीं याद आ रहा है। ओके। और अगर मैं आपसे 3 पॉइंट्स पूछूं दैट व्हाई वाज द नेहरू रिपोर्ट रिजेक्टेड, बस 3 पॉइंट्स बताएं, एक एक दो दो वर्ड के। 3 पॉइंट्स, अच्छा। 3 पॉइंट्स कैसे बताएंगे? और यही सवाल, यही जो आंसर आप बताओगे, ये किस सवाल का जवाब हो सकता है? व्हाई वर द जिनास 14 पॉइंट्स फॉर्म एंड व्हाई डिड द नेहरू रिपोर्ट वाज रिजेक्टेड? ये दोनों सवाल आएंगे, दोनों का आंसर सेम ही होगा। वो 3 पॉइंट बेस्ट बताएं क्या होगा, सेकंड बेस्ट और थर्ड बेस्ट क्या लगता है? सर, सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो थे वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये पहला रीजन पक्का वाला। दूसरा, वो सिंध बॉम्बे एनडब्ल्यूएफपी वाला, वो कहाँ है? एनडब्ल्यूएफपी वाला, एनडब्ल्यूएफपी को फुल प्रोविंशियल स्टेटस जो था, गुड, ठीक है। और लैंग्वेज वाला? और लैंग्वेज हिंदी में हो जाएगी। यस, ये भूल गए। ठीक है, ये हो गया। सो फॉलोइंग चीजें थी नेहरू रिपोर्ट के अंदर जब इंट्रोड्यूस हुई थी नेहरू रिपोर्ट के अंदर, क्या था कि इंडिया शुड बी गिवन द डोमिनियन स्टेटस, देयर शुड बी अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म होगी जो कि प्राइम मिनिस्टर 6 मिनिस्टर चलाएंगे, देयर शुड बी अ बाई कैमरल लेजिस्लेटर, नो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एनी कम्युनिटी। ये आपने क्या बोला, ये है पहला पॉइंट जिसके ऊपर रिजेक्ट हुआ था। System of weightage for minorities was as bad of the separate electorates. Reservation of Muslim seats could be possible in the provinces when Muslim population was at least 10%, and Muslims would enjoy 1/4 representation in central legislature. Sindh would be separate from Bombay only if the committee was financially self-sufficient. The NWP would be given full provincial status and Hindi should be made the official language of India. ये जो मसला था हिंदी वाला। Now Hindu under Congress threatened the government with disobedience movement as well, कि अगर आपने नेहरू रिपोर्ट हमारी इंप्लीमेंट ना की, हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। तो मुस्लिम्स का फिर क्या रिएक्शन था? ऑब्वियसली जो रिकमेंडेशन थी नेहरू रिपोर्ट में, दे वर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। मतलब आपके सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाला मसला हल हुआ, क्योंकि द नेहरूज कमिटीज ग्रेटेस्ट ब्लो वाज द रिजेक्शन ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इफ द रिपोर्ट हैड टेकन इनटू द अकाउंट ऑफ दिल्ली प्रपोजल्स, जहां पे 1/3 सीट्स की बात हुई हुई है दिल्ली प्रपोजल्स के अंदर, वो तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए थे। अगर उसको फॉलो किया जाता तो नेहरू रिपोर्ट शायद मुस्लिम्स एक्सेप्ट कर लेते।
Muslims were asking for 1/3 representation in the center, while Nehru committee gave them only 1/4. तो ये बहुत बड़ा पॉइंट आपने पहले पैराग्राफ के अंदर ये लिखना है, समझ आ गई? जी सर। उसके बाद सेकंड पॉइंट आप कौन सा लिखोगे? लैंग्वेज वाला, ठीक है। और ये कौन से दो सवालों का जवाब बता रहा हूं मैं, बताओ, विच टू क्वेश्चंस? सर व्हाट वाज द नेहरू रिपोर्ट, और एक वो नहीं, उसका गलत, गलत। नहीं, व्हाई वाज जिनास 14 पॉइंट्स गिवन, हाँ, और एक हो जाएंगे व्हाई व्हाई वाज नेहरू वाज रिपोर्ट रिजेक्टेड? व्हाई वाज नेहरू रिपोर्ट। व्हाट वाज नेहरू रिपोर्ट नहीं, 4 मार्क्स की नहीं, 7 मार्क बता रहा हूँ ना। व्हाई वाज जी जी। नेहरू रिपोर्ट रिजेक्टेड, उसका भी यही आंसर है। व्हाई वर जिनास 14 पॉइंट्स इंट्रोड्यूस, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट रिजेक्ट हुई तभी 14 पॉइंट, तो उसका भी सेम आंसर है। तीसरा रीजन क्या है? इट वाज सेड दैट सिंध वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, बट द कंडीशन ऑफ सेल्फ इकोनॉमी वाज आल्सो पुट फॉरवर्ड। इट डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स इन एनडब्ल्यूएफपी, बट बलोचिस्तान वाज ओवरलुक्ड इन द रिपोर्ट। तो ये आपके पास क्या है? थर्ड रीजन। This Hindu attitude proved to be a milestone in the freedom movement of the Muslim. It also proved to be a turning point in the life of Muhammad Ali Jinnah. And after reading the Nehru report, Jinnah announced a parting of the ways. Thus, the Nehru report was nothing else than a Congress documented and thus totally opposed by the Muslims of subcontinent. फिर एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई 1928 में, जिसका इमीडिएट रिजल्ट यही था, पब्लिकेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट, जहां पे सारे ही मुस्लिम्स जो थे अपने ओपिनियंस लेके इसको अपोज करना शुरू हो गए थे। और द कॉन्फ्रेंस लेट डाउन मुस्लिम्स डिमांड इन क्लियरेस्ट पॉसिबल टर्म, वही वाली हैं कि अपने इलेक्ट कर सकते रिप्रेजेंटेटिव, अपने सब इलेक्टोरेट्स होंगे, 1/3 सीटें चाहिए हैं, माइनॉरिटीज को रिस्पेक्ट देने से, एमडब्ल्यू बलूचिस्तान। लेकिन the resolution was the Muslims' reply to the narrow report. Hence, the rejection of the Congress-inspired constitution was completely unanimous and clear कि हाँ, 1-2 पॉइंट्स मुस्लिम वर एडमेंट थे कि हम इसके बजाय आगे ही नहीं बढ़ेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट वाला हो जाए और प्रोविंसेस वाला हो जाए। तो फिर एक ऑल पार्टीज कन्वेंशन हुई थी 1929 में। यहाँ पे क्या हुआ था? दैट उधर सजेस्ट हुआ था certain modification should be made in the narrow report, which was that 1/3 of the elective representatives of the both houses of the central legislative should be Muslims. And in the event of adult suffrage not being established in Punjab and Bengal, there should be reservations of seats for the Muslims on the basis of population के तौर पर चाहिए, और हर 10 साल उसकी री एग्जामिनेशन किया जाए कि आप पॉपुलेशन के हिसाब से और सीटें बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। Moreover, residuary powers should be left to the provinces and should not rest with the central legislature. लेकिन again, committee rejected these suggestions. क्यों? कायदे आजम compiled a set of recommendations that greatly influenced Muslim thinking to be a better part. मजीद better भी recommendations हो सकती थी. Hence, Jinnah produced his 14 points. Reason number one टू प्रोड्यूस द 14 पॉइंट्स वाज कि जो पूरी की पूरी नेहरू रिपोर्ट थी वो अगेंस्ट मुस्लिम इंटरेस्ट थी। नेहरू रिपोर्ट एंड द हिंदू एटीट्यूड proved to be a turning point in the freedom movement of the Muslims, and it also proved to be a milestone in the life of Muhammad Ali Jinnah. After reading the Nehru report, Jinnah announced a parting of the waves and termed the Nehru report as Hindu document, but rejecting the report as insufficient. He decided to give alternative Muslim agenda, which were the 14 points. जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को एक नाम भी दिया था, कुछ कहा भी था इसके बारे में, वो डायलॉग याद है? पार्टिंग ऑफ द वेज, ठीक है। क्या कहा था उसने? पार्टिंग ऑफ द वेज, क्या मतलब है इसका? कि जो मुस्लिम्स और हिंदूज हैं उनका ये फाइनल पॉइंट था कि फिर यहाँ फाइनल से पॉइंट फिर कि वो अब सारी। ये यहाँ से ना, अब यहाँ से अब एक अलग अलग रास्तों पे चल रहे हैं। यहाँ से क्लियर होगा कि हाँ, इनके अपने अपने ही रास्ते हैं। Second reason to produce the 14 points was to provide a reply to the unfair resolution. This resolution was the Muslims' reply to the Nehru report that the rejection of the Congress inspired constitution was completely unanimous and clear. The resolution made it clear that no scheme for the future constitutional government of India would be acceptable to the Muslim। मतलब इससे क्लियर था कि आगे कोई भी रेजोल्यूशन आएगा रिगार्डिंग द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, वो मुस्लिम्स भी एक्सेप्ट कभी नहीं करेंगे जब तक उनकी अब ये 14 पॉइंट्स वाली डिमांड्स नहीं पूरी होती। तीसरा रीजन टू प्रोड्यूस द 14 पॉइंट्स वाज कि जिन्ना वांटेड टू ले डाउन द बेसिस ऑफ अ फ्यूचर मैंडेट। The 14 points set out demands for any future negotiations with either the Congress or British government. The demands were also to form the basis of Muslim demand for a separate homeland. इसकी कोशिश के अंदर भी आपके पास 14 पॉइंट्स प्रोड्यूस हुए थे।
It also convinced them that the Hindus and Muslims were two separate nations. So what were the 14 points of Muhammad Ali Jinnah? अगर इसका 4 मार्क क्वेश्चन आता है, 14 नुकात सारे नहीं लिखने. You have to write that a positive aspect of the Nehru report was that it resulted in the unity of divided Muslim group. एक अच्छी जो बात थी ना नेहरू रिपोर्ट की वो ये थी कि क्योंकि ये मुस्लिम्स के खिलाफ थी, तो इसके खिलाफ जब मुस्लिम्स उठे तो सारे मिलके साथ उठे, क्योंकि मुस्लिम लीग के भी दो हिस्से हो चुके थे, मुस्लिम्स के भी अपने ग्रुप्स थे प्रोविंशियल वाइज. यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट के टाइम पे वो सब एक साथ इकट्ठे हुए थे टू फाइट अगेंस्ट नेहरू रिपोर्ट. In a meeting of the Council of All India Muslim League on March 28, 1929, members of both the Shafi League and Jinnah League participated. Quaid-e-Azam termed the Nehru report as a Hindu document but considered simply rejecting the report as insufficient, and then he gave his famous 14 points. जहाँ पे future constitution should be federal, रेजिडरी पावर्स होनी चाहिए प्रोविंसेस के पास, मेजर ऑफ ऑटोनॉमी होनी चाहिए टू ऑल प्रोविंसेस, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन शुड नॉट बी लेस देन 1/3, एटलीस्ट 1/3 होनी चाहिए, इससे कम नहीं मानी जाएगी. नेहरू रिपोर्ट में कितनी थी? 1/4. कम्युनल ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है. मोर ओवर टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन शुड नॉट बी नेसेसरी. फुल रिलीजियस लिबर्टी होनी चाहिए. नो बिल और रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड अनलेस मुस्लिम भी उसको पास करें. सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे. रिफॉर्म शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान भी, क्योंकि बलूचिस्तान को ये बार बार ओवरलुक कर देता था. Provision should also be made in the constitution giving Muslims an adequate share. The constitution should also embody adequate safeguards for the protection of Muslim culture and for the protection of promotion of Muslim education. No cabinet, either central or provincial, should be formed without being a proportion of at least 1/3 Muslim ministers, and no change shall be made in the constitution by central legislator except with the concurrence of the states contribution of Indian Federation. So the Council of All Indian Muslim accepted the 14 points of Qaid, and a resolution was passed according to which no scheme for the future constitution of Government of Indian Act would be acceptable to the Muslims be unless and until it included the demands of the Qaid presented in the 14 points. Got it?